Assalamualaikum, first year. We are reading year number 9. Today we have to discuss solubility and its curve and what are the application of the solubility curves. First of all, we must know what is solubility. Solubility is the ability of a solid, liquid or gaseous chemical substances which are referred to as the solute to dissolve in the solvent. Usually the solvent is taken as a liquid and form a solution. The solubility of the substance fundamentally depends on the solvent used as well as the temperature and pressure. Depending upon the solubility, there are three different types of the solution: saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. What is saturated solution? Solution in which additional solute cannot dissolve and excess solute will precipitate. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है मज़ीद सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता और जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और मैक्सिमम एट गिवन टेम्परेचर। अब आपने जो है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी कर्व हमने ड्रॉ करनी है, वी हैव टू ड्रॉ द सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर ड्रॉन फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Solubility curves are drawn for the saturated solution. That's why we must know what are the saturated solutions. Unsaturated solutions क्या होगा? ऐसा solution जिसमें हम मज़ीद solute ऐड कर सकते हैं, unsaturated solution. और अगर saturated solution को heat up करके इसमें मज़ीद जो है वो solute ऐड किया जाए after increasing temperature, then it is called the supersaturated solution. Now what are the solubility curves? Temperature has a marked effect on the solubility of the many substances. हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम पानी को या हम अपने सॉल्वेंट को अगर हीट अप करें तो हमारा जो है नॉर्मली इट हैपन्स कि solubility का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है. तो यहाँ पे a graphical representation between the temperature and solubility of the solution is called the solubility curve. Solubility curve क्या है? रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान में एक रिलेशन है जिसको ग्राफ के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करना है हमने, उसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं. As I have already told you, the line of the solubility curve represents a saturated solution. जो सी भी लाइन होगी वो उस लाइन को हम solubility curve कहेंगे और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो saturated solution को रिप्रेजेंट कर रही है. Points below the line represents the unsaturated solutions, while the points above the line represents the supersaturated solution. वो जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उससे जो नीचे अगर हम जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितना भी उसके नीचे वाला एरिया है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है, जबकि अगर हम उससे ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ कर दें तो वो supersaturated solution के लिए. Now there are two types of the solubility curves. Number one, continuous solubility curves, and secondly, discontinuous solubility curves. What are continuous solubility curves? Continuous solubility curves don't show breaks anywhere. As you can see from this diagram, all the lines, whether they are curved or straight, they don't show break. दे आर गोइंग कंटिन्यूस. इनके दरमियान में कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई गैप नहीं है, ये लाइन जो है वो कहीं से टूट नहीं रही. अब इन लाइंस का एक स्पेसिफिक मीन है, मतलब है, ये हमें जो है वो हर केमिकल की अपनी सॉल्युबिलिटी कर्व होती है. इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी ली गई है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया गया है और डिफरेंट केमिकल्स हैं. डिफरेंट केमिकल्स को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके इनका कंपैरिजन शो करने की कोशिश की गई है. First of all, look at the first chemical, which is sodium nitrate. Sodium nitrate is showing a straight line, and this straight line is increasing sharp, increasing straight line. ये स्ट्रेट लाइन शार्प है. इसका यहाँ पे क्या मीन है? इसका मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 होता है तो इसकी solubility 70 है. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, solubility इज 80. 20 पे solubility 90 के करीब हो जाती है और 40 से के करीब करीब जो सॉल्युबिलिटी 100 पे पहुंच जाती है. यानी कि
जस्ट जो है वो ज़रा सा इंक्रीज़ करने से सोडियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो अब्रप्टली इंक्रीज होती है। दैट्स वाई इट इज़ शार्प स्ट्रेट अपवर्ड लाइन। अब ग्राफ जब हम रीड करते हैं तो तीन तरह की लाइंस आ सकती हैं हमारे पास। एक तो स्ट्रेट अपवर्ड लाइन, इट शोज इंक्रीजिंग इफेक्ट। एक हमारे पास स्ट्रेट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस लाइन होती है विच इज़ शोइंग अ कांस्टेंट वैल्यू। जबकि अगर कोई लाइन जो है वो नीचे को जा रही हो तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है। अब इस ग्राफ में देखें हम तो मोस्टली जो नॉर्मली जो है वो सारी लाइन दे आर गोइंग अपवर्ड। लाइक कैल्शियम क्लोराइड इट इज़ ऑल्सो गोइंग अपवर्ड। थोड़ी सी ये कर्व्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो स्लो इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद ये अब्रप्ट इंक्रीज हुआ। सिमिलरली लेड नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड की जो लाइन है, ज़ीरो पे जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो 20 है। 20 to 30 के मिड में वी कैन से इट्स 25। 25 है। और अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी 25 से मैक्सिमम जो है ये 55 के दरमियान 55 तक चले जाती है। 25 से 55 तक। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पोटाशियम क्लोराइड की। मीन्स कि टेम्परेचर का इफेक्ट है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द solubility ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड increases, बट दिस इंक्रीज इज नॉट वेरी मच एज कम्पेयर टू दी एज वी लुक एट द पोटाशियम नाइट्रेट की। अगर ज़ीरो पे उसकी 10 थी तो जस्ट जो है वो आप देखें यहाँ पे 55 पे वो 100 हो जाती है। जबकि पोटाशियम क्लोराइड की ज़ीरो पे जो है वो 25 है और 100 तक जो है बड़ी मुश्किल से ये 55 पहुँचती है। मीन्स कि ये पोटाशियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट से हाफ जो है वो इंक्रीज शो करता है। जबकि सोडियम क्लोराइड का बड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। सोडियम क्लोराइड की जो लाइन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ये बड़ा ही निग्लिजिबल चेंज शो करती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सिंपल टेबल सॉल्ट डोंट हैव अफेक्ट with the increase or decrease in the temperature. That's why sodium chloride has the straight line. अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है। एक यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर एक तो सोडियम क्लोराइड का आ गया और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है सीरियम सल्फेट का, सीरियम सल्फाइड सॉरी। सीरियम सल्फाइड जो है यहाँ पे किस तरह का बिहेवियर शो कर रही है कि इसकी जो लाइन है इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। मीन्स कि as the temperature is increasing its solubility is decreasing almost। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 60 पे 50 के बाद जो है इसकी solubility almost it's touch to the zero। अब it means कि by increasing the temperature the solubility of some salts decreases, जबकि by increasing the temperature the solubility of the most of the salt increases and there are very few salts which show no effect on the solubility by increasing or decreasing the temperature। तो इस तरीके से हमने solubility curves के थ्रू हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि टेम्परेचर के हवाले से, टेम्परेचर चेंज करने से डिफरेंट केमिकल्स की solubility के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है। हमने इन्हें 3 क्लासेस में कैटेगराइज कर लिया। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, ऐसे कंपाउंड जिनकी जैसे सोडियम क्लोराइड जिनकी solubility पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड देयर आर सम अदर कंपाउंड्स जिनकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस solubility curves। Next we have the discontinuous solubility curves। Sometimes the solubility curves show sudden changes of the solubilities and these curves are called the discontinuous solubility curves। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेक्स हैं solubility curves में, सडन चेंज ऑफ दिस कर्व्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है। तो इस तरह की कर्व्स के साथ ब्रेक्स के साथ अगर solubility कर्व होगी तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस solubility कर्व। मोस्टली अगेन दिस इज द ग्राफ बिटवीन द solubility and the temperature।
Mostly discontinuous solubility curves are shown by those compounds which have water of crystallization in its molecule। जिन मॉलिक्यूल्स के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो जो है वो डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व्स जो है वो शो करती हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या चीज़ है कि जब हम किसी कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्ट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो उसी सॉल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड और 6 वाटर। अब क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड को विद 6 वाटर, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इसके 6 वाटर के मॉलिक्यूल थे तो एक फॉरन अब्रप्ट चेंज आता है विच शोज दैट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। अब यहाँ पे जो है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। Then and again an abrupt curve is shown which shows that again 2 other molecules are lost by the calcium chloride। तो ये जो ब्रेक्स आ रही हैं इस कर्व में इट शोज द लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम सल्फेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। सोडियम सल्फेट के जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड के तो दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे, जबकि सोडियम सल्फेट के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं विच आर लॉस्ट ओनली इन दी वन ब्रेक। और इसीलिए जो इसकी कर्व जो है वो हमें शार्प है और ये जो है वो इसकी पीक जो है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू द कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में यहाँ पे टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो रहे थे, यहाँ पे एकदम से 10 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और उसके जैसे ही पहले 10 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो सोडियम सल्फेट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सोल्युबिलिटी कर्व्स। हम सोल्युबिलिटी कर्व्स को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या यूजेस हैं। सोल्युबिलिटी कर्व इज यूज फॉर द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये जो डाटा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन में। In chemistry, fractional crystallization is a method of the refining a substance based on difference in their solubility। हम जब भी कोई केमिकल प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी लेवल में या इंडस्ट्रियल लेवल में तो वो केमिकल प्योर नहीं होता, उस केमिकल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वो जो इम्प्योरिटीज़ जो है उनकी सोलिबिलिटी डिफरेंट होती है ओरिजिनल केमिकल से। अब जो है यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस बनानी है वाया द डिफरेंस इन द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ पोटाशियम क्लोराइड के साथ पोटाशियम क्लोरेट के क्रिस्टल्स आ जाते हैं तो अगर हम इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दोनों की सोलिबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दोनों जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। इस तरीके से करके हम जो है वो इनको सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सोल्यूशन जो है वो हम एक सॉलिड का लेते हैं और उस सॉलिड में कोई ना कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। बेसिक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस उस प्रोसेस के लिए होता है जिसमें एक इम्प्योरिटी सॉल्युबल होती है और दूसरी इनसॉल्युबल होती है। तो हम ऐसे मिक्सचर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको फिल्टर ऑफ कर लेते हैं और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ फिल्ट्रेट में आ जाती है। ये जो फिल्ट्रेट है इसको हम एवेपोरेट करते हैं। एवेपोरेट करने के बाद जो है एवेपोरेट हम एक ख़ास पॉइंट तक करते हैं, ऐसा नहीं कि सारा ही लिक्विड एवेपोरेट कर दिया जाता है बल्कि एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो इसको एवेपोरेट किया जाता है। आफ्टर एवेपोरेशन जो है इस लिक्विड को जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ट्रे में, एक डिश में, और उसको छोड़ देते हैं इसके क्रिस्टल फॉर्मेशंस को। डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड में जो है ये क्रिस्टल्स बनेंगी। If a mixture of the two or more substances in the solutions are allowed to crystallize, for example by allowing the temperature of the solutions to decrease or increase, the precipitate will contain more of the least soluble substance। अब यहाँ पे जो है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं हीट अप करके तो यहाँ पे जब हम फिल्टर करते हैं तो जो लीस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है वो एज अ प्रेसिपिटेट जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, जबकि सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन दी difference in the solubility we can separate two components।
That's all, students. Thank you.